Good evening, dear kids. Today I am taking your exercise 20A. In that we are doing with our problem number 14. In that way, it is given that find the minimum length in centimeter and correct to nearest whole number of a thin metal sheet required to make a closed cylindrical box of diameter 20 centimeter and height 35 centimeter. So diameter is given to you and height is given to you. So I'll note down the main quantities which are given. So height is given to you. So let's write height, which is given as 35 centimeter, and radius. So diameter is 20, I guess. So radius will be 10 centimeter. So I have radius and height in my hand. So as I have already always said you that whenever you have radius with you, whenever you have height with you, so your problem is actually half done. So you have to just put into the formulas and get with the values. And now you have to find the area of thin metal sheet required. तो कितनी metal sheet आप लोगे? That will be what? That will be TSA, that is total surface area. Yes or no? The total surface area of cylinder. तो total surface area का फॉर्मूला क्या है? 2 pi r plus h. Yes? ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? हाइट और रेडियस इसमें डालना है. सो दैट विल बी 2 into 22 upon 7. Your radius is what? 10. Your radius again 10 and height is what? 35. So when you solve this, my dear kids, you will get a total surface area in your hand. So once you have total surface area, then what we have to do? Let's see. Now it is given that width of the metal sheet is 1 meter. आपके हाथ पे टोटल सरफेस एरिया आ गया. ठीक है, वैल्यूज इसकी निकाल दें. सो आई डू इट फॉर यू. सो दैट विल बी 440 अपॉन 7 एंड इनसाइड विल बी 45. सो दैट विल बी 440 into 45 divide by 7. Okay, that will go for 28.5. Okay, so that's your answer for total surface area. अब क्या बोला है? Given that the width of the metal sheet is 1 meter and you have to find the cost of sheet at the rate of 56 per meter. Width का मतलब क्या? जब आप कपड़ा या फिर आप शीट, जैसे यहाँ पे मेटल शीट की बात चल रही है, तो जब आप लेने जाते हो मार्केट में, सो यू गो फॉर वॉट? यू आस्क फॉर लेंथ, यू डोंट आस्क फॉर विथ. आप ऐसे नहीं पूछते हो कि इसका थिकनेस इतना है तो ये कितने मीटर थिकनेस में हम लोग को मिलेगा. नहीं, वी आस्क फॉर लंबाई. ओके, सो लंबाई आपको जानने की ज़रूरत है. और लंबाई कब मिलेगी? जब आप एरिया को, व्हाट इज़ एरिया? एरिया इज़ एक्चुअली व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेथ. ठीक है ना. तो अब आपके पास एरिया ये है 28.5 और आपके पास ब्रेथ, लेंथ आपके पास नहीं है, लंबाई उसकी क्या नहीं है, लेकिन उसकी विथ मतलब उसका ब्रेथ आपको पता है वो 1 मीटर है. उसको कन्वर्ट कर देते हैं 100 सेंटीमीटर में. इज दैट क्लियर? बिकॉज दिस आंसर वॉज इन सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, फ्रॉम देयर यू विल गेट द लेंथ दैट इज 28.5 divide by 100. That will give you 28. If I round up the exact figure, that will be 28.28. I'll put it as 28. Okay, so 28 what did you get with? This is the length. ये लेंथ मिला है बेटा आपको. तो अब लेंथ मिल गया आपके हाथ में. अब क्या करना है? अब हम लोग को फाइंड करना है कि आपने कितने क्या लेकर आए. ओके, यू हैव टू फाइंड एट द रेट ऑफ 56 मीटर पर मीटर. मतलब अगर आपका लेंथ आया है 28 और आप लेकर आए हैं इसको 56 पर मीटर, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट विल बी व्हाट? सो टोटल कॉस्ट विल बी 28 पर मीटर और 56 पर मीटर और 28 मीटर्स आप लेकर आए हैं, तो 28 into 56 विल बी योर टोटल कॉस्ट. गॉट माई पॉइंट क्लियर? Find the area of metal sheet required if 10% of it is wasted in cutting. So in your next part, my dear kids, they have asked you find the area of metal sheet required if 10% of it is wasted. Now कितनी एरिया? अब आपके पास ब्रेथ है और लेंथ दोनों है. लेंथ आपकी 28 है and breadth is what? Breadth was 100 centimeter, correct? So in a way we have an area in our hand. That is length is 28 and breadth is 10.
So we have area which is 2800 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है, लेकिन अब इसमें ऐसा है कि यू हैव वेस्टेड 10% एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड इफ 10% ऑफ इट इज़ वेस्टेड इन कटिंग. मतलब 10% आपकी वेस्ट हो रही है. Getting my point? So we do not know the actual area of your material required, of the metal sheet required. So let it be x. और उसमें से 10% अगर आपका वेस्ट हो रहा है तो आप माइनस करोगे और इज इक्वल टू ये जो 2800 है दैट इज द रिमेनिंग मटेरियल. गेटिंग माई पॉइंट? सो व्हाट एरिया एक्चुअली आपको कितना बाय करना चाहिए. एट प्रेजेंट आपके पास 2800 द मेजरमेंट है आपके इसका सिलेंडर के जो आपको शीट रिक्वायर्ड होगी उसका हम लोग को जो मेजरमेंट चाहिए वो 2800 है. लेकिन 10% आपका वेस्ट जाने वाला है तो आप कितना मार्केट से लेकर आएंगे. सो वी डू नॉट नो द एक्चुअल एरिया ऑफ द थिन मेटल शीट रिक्वायर्ड. सो आई हैव केप्ट इट एज एक्स. और उसका अगर 10% वेस्ट जाता है तो द actual area, the real area is 2800. So this is my equation, my dear kids, and if I solve this equation I will get 9x is equal to 2800 and x will be equal to 2800 upon 9. Are you getting my point? So the end part is bit tricky, but you can do it. Yes? Next I have problem number 15 in which it is said that 3080 centimeter cube of water is required to fill a cylindrical vessel completely. तो अगर मैं यहाँ पे एक cylindrical vessel बना देती हूँ, उसको अगर completely आपने fill किया है तो उसका वॉल्यूम है 3080 सेंटीमीटर क्यूब. लेकिन अगर आपने उसको 5 सेंटीमीटर बिलो तक फिल किया है, 5 सेंटीमीटर बिलो मतलब यहाँ तक, सपोज यहाँ तक अगर आपने फिल किया है इसको तो उसका वॉल्यूम है 2310. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं थोड़ा कलरफुल बनाती हूँ तो आपको शायद समझ में आएगा. अगर ऊपर तक आपने फिल किया है तो इट इज़ 3080. अगर आपने यहाँ तक फिल किया है तो दैट इज़ 2310. और ये जो नीचे की ये है ना, वे 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है. जस्ट 5 सेंटीमीटर बिलो फ्रॉम योर रिम नीचे की तरफ अगर आप फिल कर रहे हो तो 2310 आपका वॉल्यूम है वाटर का. ठीक है, क्लियर है. नाउ वी डू नॉट हैव रेडियस. तो रेडियस हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन एक चीज़ है हमारे हाथ में. अगर मैं इन दोनों वॉल्यूम्स को माइनस कर दूंगी तो व्हाट आई विल गेट विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस पार्ट. दैट मीन्स दिस पार्ट ऑफ द सिलेंडर आई विल गेट द वॉल्यूम. एंड दिस पार्ट की हाइट कितनी है? 5 मीटर. तो अगर ये हम लोग को 3080 माइनस आप करेंगे 2310, सो दैट विल बी, माय डियर किड्स, यू विल गेट 770. So that will be what? That will be the volume. We can say that will be the volume of vessel of height 5 centimeter. Can we go with this? Height 5 centimeter. So that will be what? 770. ठीक है. अब उसका फॉर्मूला क्या होगा? नॉर्मल हम लोग का जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच. यस, सो वी कैन गो फॉर पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम इज इक्वल टू 770. नाउ उसमें से हाइट आपके पास 5 है, पाई आप डाल सकते हैं 22/7. आर स्क्वायर आपको आर स्क्वायर रखना पड़ेगा. हाइट आपके पास 5 है, 770 उसका वॉल्यूम आया है और उसमें से आपको रेडियस निकालना है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? सो दैट विल गो 770 into 7, that will be okay, and you have to divide by 22 into 5. डिवीजन में जाएगा यहाँ पे. सो यू विल गेट रेडियस आर स्क्वायर यू विल गेट 49 एंड आर यू विल गेट 7. तो आपके पास रेडियस आ गया. गेटिंग माई पॉइंट? ये रेडियस आ गया तो वही रेडियस नीचे का भी होगा, मतलब पूरे सिलेंडर का आपके हाथ में रेडियस आ गया. नाउ फर्दर व्हाट दे आर सेइंग, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ वेसल. अगर पूरे वेसल की हाइट लेनी है तो पूरे वेसल का जो वॉल्यूम है वो कंसीडर करते हैं. तो फिर से हम लोग आएंगे पाई आर स्क्वायर एच और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3080 क्योंकि वो पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है. ठीक है, ऊपर तक जब आप पानी फिल करते हो तो ऊपर तक का वॉल्यूम है, तो हमको हाइट भी तो ऊपर तक की लेनी है ना. सो विल टेक हाइट मिसिंग नाउ. रेडियस तो अभी अभी आपने जो फाइंड किया है 7, उसका स्क्वायर कर दो और पाई की वैल्यू डाल दो 22/7 इज इक्वल टू 3080.
तो यहाँ से जो आपको हाइट मिलेगी दैट विल बी द हाइट ऑफ एंटायर सिलेंड्रिकल वेसल. Got my point clear? Okay. Further what they have said, so you got 2 points here. Height of the vessel, radius of the vessel. Now they are saying what is the wet surface area of the vessel when it is half filled with water. तो अगर पूरा सिलेंडर आपका हाइट, अगर आपको बता दूं मैं यहाँ पे आपकी हाइट निकलने वाली है 20 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर आप पूरा जो हाइटेड है 20 सेंटीमीटर उसमें आप वाटर फिल कर रहे हो आधा, मतलब आपका कहाँ तक फिल कर रहे हो 10 सेंटीमीटर हाइट तक. एम आई करेक्ट? तो अभी आप क्या करोगे, हाइट लोगे 10 सेंटीमीटर, रेडियस तो चेंज नहीं होगा, रेडियस तो आपका वही रहेगा 7. ठीक है, और आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है वेट सरफेस एरिया ऑफ द सर्कल. तो वेट सरफेस एरिया में क्या आएगा, एक तो आपका कर्व सरफेस एरिया भी आएगा और नीचे का ये सरकमफ्रेंस क्रॉस सेक्शन एरिया भी आएगा, मतलब सर्कल. और ऊपर का नहीं आएगा क्योंकि ऊपर तक तो पानी गया ही नहीं है ना. तो हम क्या करेंगे, नीचे का एक सर्कल मतलब पाई आर स्क्वायर और यहाँ का कर्व सरफेस एरिया कितनी हाइट तक, 10 हाइट तक. गेटिंग माई पॉइंट? तो उसका फॉर्मूला कैसे आएगा, तो 2 पाई आर एच आपका कर्व सरफेस एरिया प्लस नीचे का क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा. एंड रेडियस कौन सा डालेंगे आप, 7. हाइट कौन सी डालेंगे आप, 10. और वहां से क्या आएगा, वेट सरफेस एरिया. तो पानी ने कितनी एरिया को गीला किया है, वेट किया है, तो उसका आपको वेट सरफेस एरिया आएगा. इज दैट क्लियर? Next I'll take your problem number 16 which says find the volume of largest cylinder formed when a rectangular piece of paper 44 cm by 33 cm is rolled along the shorter side. अगर आप पेपर ले रहे हो, एक पेपर ले रहे हो, ठीक है, उसका आपका शॉर्टर साइड 33 है और ये 44 दिया हुआ है. अब आप सिलेंडर इस तरीके से बनाओगे कि आप 33 की तरफ आप उसको मोड़ रहे हो. व्हाट इट इज सेड, इफ़ यू आर रोलिंग अलोंग इट्स शॉर्टर साइड, तो मैं जब रोल करूँगी शॉर्टर साइड से तो मेरा 33 यहाँ पे आ जाएगा नीचे की तरफ और ये जो 44 है वो लंबाई की तरफ आ जाएगा. तो इन अ वे एक सिलेंडर बन जाएगा जिसकी हाइट हो जाएगी 44 और जिसका सरकमफ्रेंस मतलब 2 पाई आर नीचे की तरफ हो जाएगा 33. तो जहाँ पे आपको 2 पाई आर मिल गया तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 33 करके क्या आप रेडियस निकाल सकते हैं वहाँ से? यस, we can get the radius. Now further it says you have to find the volume. एक बार आपके हाथ में height है, आपके हाथ में radius आ गया, ठीक है. सो जैसे ही आपके हाथ में radius भी आ गया है तो radius आपका निकलने वाला है 5.25. Yes. So you have to find what? Volume. And what is volume, my dear kids? It is pi r square h. तो आपको क्या करना है, पाई की वैल्यू डालनी है 22/7, रेडियस आपको डालना है 5.25, उसका स्क्वायर करना है तो फिर से मल्टीप्लाई करो 5.25 और हाइट आपके साथ इस बार है 44 एंड यू विल गेट द वॉल्यूम का आंसर. ठीक है, अब ये हमने कब किया, व्हेन इट इज रोल्ड अलोंग द शॉर्टर साइड. अब आपको कैसे करना है, अलोंग द लॉन्गर साइड. तो अब कैसा हो जाएगा कि अगर आप नीचे की तरफ लॉन्गर साइड की तरफ मोड़ रहे हो तो नीचे का 44 बन जाएगा आपका क्रॉस सेक्शन का सरकमफ्रेंस और ये जो 33 है वो बन जाएगा आपका हाइट. तो इस बार आपका क्या आ जाएगा, हाइट आ जाएगा 33 और सरकमफ्रेंस आ जाएगा मतलब 2 पाई आर आ जाएगा 44. क्यों 2 पाई आर लिख रही हूँ मैं, क्योंकि वो फोल्ड होके एक गोला चक्कर बन जाता है ना नीचे की तरफ. अगर हम सिलेंडर बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो नीचे का जो लेंथ है वो बन के चक्कर बन के बन जाएगा सरकमफ्रेंस नीचे का. गेटिंग माई पॉइंट? और वहाँ से आपको निकालना है रेडियस और फिर सिमिलरली आपको यहाँ पे भी वॉल्यूम फाइंड करना है. तो अब की बार आप हाइट क्या लेंगे 33 और रेडियस यहाँ से जो निकाला है that radius you will take and finally what you will get volume you have to find. फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच. फिर आपको सब वैल्यूज डालनी है. अच्छा, आपको रेडियस अगर जानना है कि यहाँ का रेडियस क्या निकल रहा है तो रेडियस विल बी 7. सो हाइट लेना है 33, रेडियस लेना है 7. Dear kids, your next problem is problem number 17 which says a metal cube of side 11 cm is completely submerged in water. तो अगर मैं वाटर कंटेंट इन अ सिलेंडर, तो अगर मैं एक सिलेंडर बना रही हूँ और उसमें मैंने एक मेटल क्यूब डाला है और जो मेटल क्यूब है उधर उसने पूरा सबमर्ज्ड इन वाटर है, ठीक है, विद डायमीटर 8. जो सिलेंडर है उसका डायमीटर 28 है.
सो डायमीटर इज गिवन एज 28। अगर डायमीटर 28 है तो हम लोग को रेडियस मिल जाएगा यहाँ से 14। ठीक है, रेडियस आपके हाथ में है। एंड अ मेटल क्यूब जो डाला है उसके डायमेंशन दिए हुए हैं 11। अब क्यूब है तो उसका एक साइड होगा, वो स्क्वायर से बना हुआ है, तो 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है उसका डायमेंशन। एंड फर्दर इट सेज फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। अब बच्चों आपको पता है, आपने फिजिक्स में किया ही है कि जब आप कोई ऑब्जेक्ट या डाल रहे हो पानी के अंदर, तो जो लेवल ऑफ वाटर है वो ऊपर की तरफ राइज होगा ऑब्वियसली। तो जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आप डाल रहे हो दैट विल बी एक्चुअली इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन द सिलेंडर। तो जो ऊपर की तरफ पानी आया है उसका वॉल्यूम क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। जितना बड़ा आप क्यूब डालोगे उतना पानी डिस्प्लेस होगा, अपनी जगह से ऊपर की तरफ आएगा। करेक्ट और नॉट? यस, करेक्ट। सो व्हाट यू कैन राइट इज, यू कैन राइट वॉल्यूम of cube is equal to volume of water displaced या water rise, ऐसा कुछ लिख सकते हो। ओके, वॉल्यूम ऑफ क्यूब आपको पता है क्या है, इट इज साइड क्यूब। तो हम करेंगे 11 इंटू 11 इंटू 11 इज इक्वल टू वाटर वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इन अ सिलेंडर। क्योंकि ये सिलेंडर की शेप में है तो हम लोग इसका वॉल्यूम सिलेंडर का लेंगे। दैट विल बी व्हाट माय डियर किड्स, दैट विल बी पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे 11 का क्यूब तो बन जाएगा, आपका हाथ में आ जाएगा 11 इंटू 11 इंटू 11 दैट इज 1331 आई गेस। एंड 22/7 आप पाए रखोगे। रेडियस आपको दिया हुआ है 14 इंटू 14, लेकिन आप हाइट नहीं डालोगे क्योंकि हाइट आपकी कितनी पानी की बढ़ रही है वही तो आपको फाइंड करना है। फाइंड द राइज इन द लेवल ऑफ वाटर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? व्हेन यू कैलकुलेट दिस माई डियर किड्स, you will get the height, maybe in decimal you will get it, but that will be fine. What you will do now, 11 into 11 into 11, take this 7 in multiplication, take all these 3 into division and get the answer. So calculation is your part. Okay my dear kids, I am directly jumping on to problem number 21. Okay, we have sum of height and the radius are 35. sum of height and radius of a solid cylinder. तो height और radius का जो sum है, addition है, वो दिया गया है यहाँ पे 35. Okay, further it says its total surface area, that is TSA, is given as 3080 centimeter square and you have to find the volume. Let's start. जो दिया हुआ है उसी से start करते हैं. TSA मुझे पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, it is 2 pi r h plus r. यस, तो h प्लस आर तो आपके हाथ में है तो क्यों ना हम उसे डाल दें, और टी एस से भी आपके हाथ में है। सो दैट इज 3080 इज इक्वल टू 2 इंटू 22/7 फॉर पाई आर आई डो नॉट हैव, बट h प्लस आर आई हैव इट। फ्रॉम दिस इक्वेशन व्हाट इज मिसिंग, r इज मिसिंग। सो जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ये नंबर्स आप सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यू आएगी और वहाँ से आपके पास आ जाएगा r, दैट इज रेडियस। जैसे ही आपके हाथ में रेडियस आ रहा है, रेडियस आने वाला है आपका 14 सेंटीमीटर। जैसे ही आपके हाथ में रेडियस आ गया, आप क्या करेंगे, उसको h प्लस आर फॉर्मूला में जो आपका इक्वेशन दिया है h प्लस आर इज इक्वल टू 35, उसमें आप डाल दो h प्लस 14 क्योंकि रेडियस आपका 14 निकला है इज इक्वल टू 35, और वहाँ से आप हाइट निकालो, दैट विल बी 21 सेंटीमीटर। जैसे ही आपके पास 21 हाइट आ गया, रेडियस आपके हाथ में है, और मैंने कहा है आपको हाइट एंड रेडियस आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एक बार वो आ गए, बस फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत है, फॉर्मूलाज को दिमाग में डालने की ज़रूरत है कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम होता है क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट, दैट इज पाई आर स्क्वायर एच। गॉट माई पॉइंट क्लियर? सो इसमें डालो 22/7, रेडियस आपका निकला है 14 इंटू 14 इंटू हाइट आपका निकला है 21। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपका एक बहुत ही अच्छा आंसर आएगा 12936 सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यूब? क्योंकि ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम्स आर ऑलवेज इनटू क्यूब्स। ओके माय डियर किड्स, नेक्स्ट। Okay, I have list of problems. Okay, no issue. I'm taking your problem number 23, which goes a cylindrical vessel of height 24. तो एक सिलेंडर बना देते हैं, उसकी एक हाइट दे देते हैं जो है कि है 24 सेंटीमीटर,
एंड द डायमीटर 40, अगर डायमीटर 40 है तो रेडियस बन जाएगा 20 सेंटीमीटर, इज फुल ऑफ वाटर. फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्मॉल सिलेंड्रिकल बॉटल्स वे ईच ऑफ हाइट 10, डायमीटर 8 सेंटीमीटर विच इट कैन फिल. अब इस बड़े से सिलेंडर में से आपको पानी उतारना है छोटे छोटे सिलेंडर्स में, और छोटे छोटे सिलेंडर्स उनका मेजरमेंट क्या है? उनका मेजरमेंट क्या है बेटा? उनका मेजरमेंट है कि उनकी हाइट है 10 और डायमीटर है 8, तो रेडियस हो गया 4. ठीक है, अब आपको करना क्या है? वेन एवर यू हैव सच काइंड ऑफ थिंग कि आपको एक में से निकाल के दूसरे में डालना है, तो वॉट यू हैव टू कंसिडर? यू हैव टू टेक वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर, ईच स्मॉलर सिलेंडर. अगर ये कर दिया तो आपके पास आ जाएगा वॉट? नंबर ऑफ बॉटल्स दैट कैन बी फिल्ड विथ द वाटर फ्रॉम लार्जर सिलेंडर. आर यू गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? तो करेंगे क्या? हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ, मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लिख के देती हूँ. सो नंबर ऑफ बॉटल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर अपॉन वॉल्यूम ऑफ ईच स्मॉलर सिलेंडर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ लार्जर सिलेंडर मतलब आपने करना है पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच, और वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर सिलेंडर पाई छोटा आर स्क्वायर छोटा एच. ठीक है, तो पाई पाई यहीं से कट कर दो. अब डालो आर स्क्वायर की वैल्यू, तो वो हो जाएगी 20 इंटू 20 बड़े की, और बड़े का हाइट है 24 अपॉन छोटे के रेडियस है 4 इंटू 4 और छोटे का हाइट है 10. तो जब आप ये इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आपके हाथ में आ जाएगा 60. सो व्हाट इज 60? 60 है नंबर ऑफ बॉटल्स दैट कैन बी फिल्ड फ्रॉम विद द वाटर फ्रॉम द लार्जर सिलेंडर. गॉट माई पॉइंट क्लियर? Okay. Next, I'll take your problem number 24, which goes 2 cylinders, one with diameter 60. 2 सिलेंडर्स हैं, बना देते हैं 2 सिलेंडर्स यहाँ पे. एक का डायामीटर है 60, मतलब रेडियस हो गया 30, और हाइट दी हुई है 30. चलो दोनों चीज़ें लिख दी. अदर विथ रेडियस 30, दूसरे का रेडियस 30 है और हाइट 60 है. ठीक है, दे आर मेल्टेड एंड रिकास्टेड इनटू अ थर्ड सिलेंडर. अब उनका मेल्टिंग और रिकास्टिंग हो रहा है. मेल्ट करके हमने थर्ड सिलेंडर बना दिया जिसकी हाइट है 10, और हमको फाइंड करना है डायमीटर, मतलब रेडियस फाइंड कर दो, उसका डबल कर देंगे. अब होता क्या है, जब हम मेल्टिंग और रिकास्टिंग करते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग वॉल्यूम्स लेते हैं. तो क्या हो जाएगा? दिस इज सपोज वॉल्यूम 1 फॉर द फर्स्ट सिलेंडर plus this is suppose volume 2 for the second cylinder will become equal to volume of the third cylinder. लेकिन होगा क्या कि volume of the third cylinder में आप R मिसिंग कर दोगे क्योंकि वो है ही नहीं, और इस पूरे इक्वेशन में से आप क्या बनाओगे? आपको R निकालना है. गेटिंग माई पॉइंट क्लियर? सो यहाँ से आप करोगे पाई आर स्क्वायर एच, फिर एक और पाई आर स्क्वायर एच. इट विल गिव यू पाई बड़ा आर स्क्वायर बड़ा एच. ठीक है, तो इसको बड़ा एच कर देते हैं. ये सब जब चीज़ें आप इसमें डालोगे आपकी आर की वैल्यू आ जाएगी. कैन यू डू दैट? योर नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 27 विच गोज समथिंग लाइक दिस. देयर आर 2 राइट सर्कुलर सॉलिड सिलेंडर्स. सो हम लोग 2 सॉलिड सिलेंडर्स बना देते हैं. यहाँ पे उसमें डायमेंशंस क्या दिया हुआ है? दैट द रेडिया आर इन रेशियो 3:5. तो अगर इसका रेडियस हमने 3x ले लिया तो इसका हो जाएगा 5x बिकॉज दे आर इन रेशियो 3:5. एंड व्हाट अबाउट द हाइट्स? द हाइट्स आर इन रेशियो 2:3. सो वी विल टेक दिस इज 2x एंड दिस इज 3x. करेक्ट? एंड यू हैव टू फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया. अब कर्व सरफेस एरिया का रेशियो लेना है. ये सिलेंडर 1 है तो इसको सिलेंडर 1 दे दो. ये सिलेंडर 2 है. कर्व सरफेस एरिया क्या होती है? तो 2 पाई आर 1 एच 1 अपॉन रेशियो है, फिर दूसरा 2 पाई आर 2 एच 2. करेक्ट? यहाँ से आपका 2 पाई तो कट हो रहा है, और R1 आपका रेडियस 1 है 3x, हाइट 1 है 2x, रेडियस 2 है 5x,
और हाइट 2 है 3x. Am I correct with this? और कट, so the ratio is 2:5. Easy and sober problem. इसी तरीके से आपको रेशियो बनाना है वॉल्यूम्स का. प्लीज़ उसको अलग अलग सॉल्व मत करो, क्योंकि रेशियो बनाना है तो डायरेक्टली उनको डिवीजन में डाल दो. अब वॉल्यूम के लिए भी आप रेशियो बना रहे हो तो दोनों का वॉल्यूम डिवीजन में डाल दो. दैट इज व्हाट पाई आर, तो R1 स्क्वायर H1, फिर नीचे में पाई R2 स्क्वायर H2. फिर डालो ना उनका जो एक्स फॉर्म में वैल्यू है वो डाल के उसका रेशियो फाइंड करो. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वेरी क्लियर. Shall we stop it here? Okay, God bless.